Yes, you can go ahead. 3x square plus 2x plus 1, x plus root 2, something you had studied last in 9th standard. Let us see in detail, just recall it. Okay, let's see the definition. An algebraic expression in which coefficient of each term is a real number and power of each term is a non-negative integers is a polynomial over R. So any algebraic expression is there, we need to see their coefficients, whether they are real numbers, and especially see their powers. Power should be non-negative integers. Non-negative integers includes from 0, 1, 2, 3 onwards, 1, 2, 3, 4 onwards. There is no negative integers here. There is no fraction over here. Integers means pure integers, no fraction. See, this year we are going to study the one variable polynomials in 10th standard. See the standard form of the polynomial. Yes. See, something I sketched over here. P of x equal to ax cube plus minus bx square plus cx plus dx. Here cx is there. X has power 1. We don't write. When the power of x is 1, we don't write as a power. We simply write cx. Though I mention over here. Plus simply the constant term d. But it has a x with a 0 power. X to the power 0 is 1. So here I wrote a polynomial with 4 terms over here. In that 4 terms, a, b, c and d are coefficients. And as per the definition of polynomial, they must be the real numbers. They may be fraction, they may be rational, they may be irrational numbers. Okay? So coefficients should be real numbers. Now let us see about the powers. In the first term, power is 3. In the second term, power is 2. In the third term, power is 1. In the fourth term, power is 0. All the powers should be non-negative integers from 0 onwards. There should not be any fraction. There should not be any negative numbers. Okay. So in short, we say that power should not be in fraction or negative numbers. पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए. इस बात का खास ध्यान रखिएगा. एंड कोएफिशिएंट शुड बी रियल. Okay, let's see some examples. Example and representation of polynomials. See, when we write the polynomials, we can write in any way, but the standard form of the polynomial is that we write the terms in the descending order of their powers. That is ax cube power is 3, bx square power is 2, cx power is 1, and last term is constant term d. Let's see some examples of that. See here p of x. I zoom it. Root 2x cube plus root 5x square minus 7x plus pi here. Here the coefficients are root 2, root 5, minus 7 and pi. All these are rational, real numbers. Root 2, root 5 are irrational, though it is a part of real. Here pi is also an irrational number. It's a part of real. Minus 7 is an integer. So here coefficients are real numbers and their powers. See here, power is not negative. Power is not a fraction. So 3, 2, 1 like this. So next go ahead. Second example, 2y square minus 3y plus 4. It is also a polynomial with the three terms. Highest power is 2. That means its degree is 2. Do you know the degree of the polynomial? The highest power of variable in a polynomial is called degree of that polynomial. Next example, 5x cube minus 4x square plus x minus root 2. Again here, root 2 is a coefficient, not in the power. Here the variable is x. Their powers are 3, 2 and 1. It's a polynomial. Now the variable is changed here.
In this polynomial, 7u to the power 6 minus 3 by 2 u to the power 4 plus 4u square plus u minus 8. Here some terms are missing. It doesn't matter. Here fifth term is missing. Here cube term is missing. It doesn't matter here. So 7 minus 3 by 2, 4, 1 and minus 8 are real numbers, and there is no power negative or fraction. Go ahead. One more example, 2 by 5 again in coefficients. Doesn't matter, it's also a polynomial. 2x plus 3, it's also polynomial. 0. 0 is called as a zero polynomial. As we know in 9th standard, we don't define the degree of zero polynomial. Here p of x mere integer minus 25, it's a constant polynomial. When the degree of the polynomial is 0, at that time it becomes a constant polynomial. चलो ये तो हो गया अभी पॉलिनोमियल्स के बारे में. अब देखते हैं कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं. लेट अस सी दैट. Following are not polynomials, just find out the reasons. Root x plus 3. Here x is in the root. Root x means x to the power 1 by 2 plus 3. See here. Here in power there is a fraction 1 by 2. So it is not a polynomial. As per our condition, power should not be in fraction. So root x plus 3 is not a polynomial. X plus 1 upon x. What do you think? It follows all the conditions. But see here, in the second term, x is in the denominator, whose power is 1 here, when it is in the denominator. When you bring in the numerator, it becomes negative. See here. X plus x to the power minus 1. So it is negative. So as per our condition, it is not a polynomial. 1 upon x minus 1. Again, x is in the denominator. It is not a polynomial. Root x plus 2. Same as example 1. X is in the root. X का power 1 by 2 हो जाएगा. It is not a polynomial. Also 1 upon x square plus 2x plus 3. Again, it is in the denominator. It is not a fraction. So always keep this in mind. Whenever any algebraic expression is given to us, simplify is in the simplest form. Bring all the variables in the numerator. Then check whether the power is in the fraction or is negative. If it is not, then it is a polynomial. So degree of the polynomial, the highest power of the variable in a polynomial is called degree of the polynomial. Okay, understood in that? So already you studied in 9th standard, just we revise it. Let's go ahead. Yes. Let's see the types of polynomials. Already you studied in 9th standard. Types of polynomials. Again, there are two types of polynomials based on degree and based on number of terms. तो उसमें देखेंगे हम based on degree. A polynomial with a degree 1 is called linear polynomial. Okay, you studied already. इसे linear क्यों कहते हैं? Why it is called linear polynomial? जब हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, इसलिए इसको लीनियर कहते हैं. जब ग्राफिकल पार्ट व्हेन आई विल टीच यू एट दैट टाइम आई विल draw the graph of the entire polynomials. I will show you how the graph of this linear polynomial. See the examples over here. Here the first polynomial 2x minus 3 degree is 1. Here root 3 x plus 5. X is outside the root. Keep this in mind. It's a linear polynomial. Degree is 1. Here y plus root 2. Again the power of y is 1. X minus 2 upon 12. Again power of x is 1. 3z plus 4. Again the variable z is there whose power is 1. 2 by 3 u plus 1. Here the variable is u, its power is 1. All these are all examples of the linear polynomials. Standard form of linear polynomial is given by ax plus b, p of x equals to ax plus b, where a is not equal to 0. ऐसा क्यों? a not equal to 0 क्यों है? अगर हम a को 0 कर देंगे तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, उस पॉलिनोमियल का x खत्म हो जाएगा वहाँ पे.
यू विल गेट ओनली पी ऑफ एक्स इक्वल टू बी विच इज़ अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल जब वेरिएबल नहीं होता है उसे हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं. तो लीनियर पॉलिनोमियल को अगर बने रहना है तो वहाँ पे ए शुड नॉट बी ज़ीरो. जब डिग्री 2 हो तो क्या होता है? A polynomial of degree 2 is called a quadratic polynomial. For example, see here. अब यहाँ पे देखो, जब भी आप डिग्री देख रहे हो तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स देखने की जरूरत नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है. कीप दिस इन माइंड. सो यार पहले एग्जाम्पल में देख रहे हो आप वाई स्क्वायर माइनस 2 डिग्री इज 2 ईयर. दो टर्म्स है, टर्म्स से कोई लेना देना नहीं. डिग्री 2 है, इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, फिर भी यहाँ पे देखो इसका x का हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट एग्जाम्पल u अपॉन 3 माइनस 2u स्क्वायर प्लस 5. अगेन द हाईएस्ट पावर ऑफ u इज 2. अगेन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट रूट 5 वाई स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 रूट 5 वी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 3 वी. यहाँ पे वेरिएबल v है, इस एग्जाम्पल के अंदर वेरिएबल v है और v की डिग्री यहाँ पे 2 है करके. नेक्स्ट एग्जाम्पल 4z स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर. अगेन वेरिएबल इज z, डिग्री इज 2. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. नेक्स्ट, सो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. यहाँ पे a शुड नॉट बी 0. Why this is? If a becomes 0, so ax square term will be vanished. So only it becomes bx plus c, which will become a linear polynomial, not the quadratic polynomial. That is why a should not be 0. a 0 यहाँ पे कभी नहीं होगा. a 0 हो जाएगा तो वो स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपको bx प्लस c रहेगा जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल बन जाएगा. तो इसको क्वाड्रेटिक बने रहना है तो जब आपको कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी a नॉट इक्वल्स टू 0. a का 0 होना नहीं चाहिए यहाँ पे. ठीक है. जब डिग्री 3 होती है उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स को देखने की जरूरत नहीं है. हर एग्जांपल है. फर्स्ट एग्जांपल देखो 2 माइनस एक्स क्यूब डिग्री 3 है. यहाँ पे सिंपल मोनोमियल है. एक्स क्यूब डिग्री 3 है यहाँ पे. रूट 2 एक्स क्यूब. 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. अगेन डिग्री 3 इज देयर. 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. अगेन यहाँ पे डिग्री 3 है यहाँ पे. ठीक है. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. सो स्टैंडर्ड फॉर्म द क्यूबिक पॉलिनोमियल अगेन ax cube plus bx square plus cx plus d where a not equals to 0. क्यूब टर्म को बचाए रखना है तो a 0 नहीं होना चाहिए. ये हो गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री. नाउ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. yes, already you know all about this. Monomial. A polynomial with one term is called monomial. whatever may be the degree. डिग्री कुछ भी हो, एक टर्म है उसको हम मोनोमियल कहेंगे. वो टर्म लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है. मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म. नेक्स्ट, बाइनोमियल. अ पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल. व्हाटएवर मे बी द डिग्री. डिग्री कुछ भी हो, आपको क्या याद रखना है? 2 टर्म्स है मतलब वो बाइनोमियल है. नेक्स्ट, ट्राइनोमियल. A polynomial with a degree 3, a polynomial with 3 terms is called trinomial. Okay, समझ में आ गया टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्या है इस चैप्टर के अंदर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. सेकंड के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए. ये गलती से क्वाड्रेटिक ही रह गया है कॉपी पेस्ट करने में. ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है. गो अहेड, आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा. यस यस, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. क्या होता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल? पहले एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा. p ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 8. यह एक पॉलिनोमियल है विद डिग्री 1. अब इसका मुझे जीरोस निकालने हैं. अब जीरोस निकालने के लिए जैसे हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे, इसके हम वैल्यूज निकाल देते हैं. फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. x की जगह पे 0 रखेंगे. 2 इंटू 0 दैट इज 0 माइनस 8 हो जाएगा.
पी ऑफ 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, 2 माइनस 8 माइनस 6 हो जाएगा। ऐसे हम x के पॉसिबल वैल्यूज़ रखेंगे, जब वो 0 आएगा तो हम कहेंगे तो उस x के वैल्यूज़ को हम कहेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। लेकिन हर बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। स्पेशली 10th स्टैंडर्ड के अंदर आपको डायरेक्ट स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको x की ऐसे वैल्यू निकालनी है कि वो वैल्यू उसमें रखने से पॉलिनोमियल ज़ीरो बन जाए, उसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। 0 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में क्या लिखो देखो, all values, real numbers, all possible values of the variable for which polynomial becomes zero। वेरिएबल के ऐसे वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज रखो कि जिसकी वजह से अगर पॉलिनोमियल अगर ज़ीरो बन जाता है तो वो उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इन शॉर्ट में आपको किसी भी पॉलिनोमियल का अगर ज़ीरो निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको इज इक्वल टू ज़ीरो बना देना है, जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। यस, 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 8 को राइट में लेके चले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा, दैट इज 2x इक्वल्स टू 0 प्लस 8 दैट इज 8। 2 मल्टीप्लाइड x के साथ में 8 में डिवाइड हो जाएगा, 8 को डिवाइड करेगा, सो x बिकम्स 8/2, 2 1 जा 2 4 जा, सो x इक्वल्स टू 4। सो इस पॉलिनोमियल के 0 आया 4, एक ही पॉलिनोमियल है, एक ही 0 है यहाँ पे, दैट इज 4। आप 4 को इसमें रख के देखो, पॉलिनोमियल के अंदर पी ऑफ 4 निकालो। 2 इंटू 4 माइनस 8, 2 इंटू 4 8, 8 माइनस 8 0 हो गया, दैट इज आवर आंसर इज करेक्ट। यस, सो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 4। वॉच करो ध्यान से, इसका डिग्री कितना है, 2x माइनस 8, इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1। जीरोस कितने आए, 1, याद रखना है इस चीज। नेक्स्ट सेकंड सम, एक्स स्क्वायर माइनस 16, यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कैसे दो टर्म वाला है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखने जाओ तो इसमें मिडिल टर्म मिसिंग है, कोई बात नहीं, मिडिल टर्म मिसिंग है तो इसका हमें क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। इज इक्वल टू 0 कर देंगे सबसे पहले तो, सो एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल्स टू 0। 16 को राइट में ले लेंगे, सो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16। एक्स स्क्वायर, हमें एक्स चाहिए, स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो 16 का स्क्वायर रूट लेंगे हम लोग, एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। लेकिन यहाँ पे दोनों वैल्यूज रखनी है, प्लस माइनस 4 दोनों लिखने हैं यहाँ पे। 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 आता है, माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 आता है। तो यू नीड टू राइट हियर बोथ द वैल्यूज ऑफ 4, प्लस 4 एंड माइनस 4। सो हियर देयर आर 2 zeros here, 4 and minus 4. Okay, understood? Next, go for third sum. Now we got this again, a quadratic polynomial, p of x equals to x square minus 7x plus 10. See here, how many terms are there, 3 terms are there. It's a quadratic trinomial. We need to find it 0, compare, equate it with 0, इसको 0 बना देंगे। अभी एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स स्क्वायर इज अलोन, सो राइट द कोएफिशिएंट, कुछ नहीं मतलब कोएफिशिएंट 1 होता है, याद रखना है, दैट इज 1x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे इस 1 को इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 10 क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, प्लस 10। मतलब 10 के हमें ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि जिसका सम और डिफरेंस -7 आता हो, सम और डिफरेंस -7 आता हो। यहाँ पे अभी देखो प्लस 10 के दो फैक्टर्स चाहिए, प्लस मतलब क्या हुआ, प्लस मतलब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं कि जिसका टोटल -7 हो, जिसका टोटल -7 हो। तो 5 2 जा 10 कर देंगे, और 5 और 2 दोनों का +7 आता है, लेकिन यहाँ पे -7 चाहिए, तो -5 -2, -5 -2 -7, when the
दो नंबर का साइन जब सेम होता है, जब उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कीपिंग द साइन एज इट इज़, माइनस माइनस रिमेन्स माइनस और दोनों का प्लस हो जाएगा, 5 + 2 7। और प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो -5 × -2 + 10, मतलब हमारे फैक्टर्स बिल्कुल सही बैठ रहे हैं। चलो तो लिख देंगे हम यहाँ पे -7 को स्प्लिट मारेंगे। -7 को स्प्लिट किया है हमने, -5x -2x। ऑलरेडी यू स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हमने मिडिल टर्म -7x को स्प्लिट किया है, -5x एंड -2x। अब फर्स्ट दो टर्म में देखो, x² - 5x, इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? x कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों में से आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। चलो पहले में तो हम x कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x² में से x गया है, बच गया x - 5। ठीक है, अभी ये जो थर्ड एंड फोर्थ टर्म है -2x + 10, इन दोनों में से हम -2 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा x - 5 = 0। अगेन x - 5 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, दोनों टर्म में से बाहर आ जाएगा x - 5। सेकेंड ब्रैकेट में x - 2 = 0। सो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर दिया, x - 5 × x - 2 = 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, आइदर पहला वाला 0 या दूसरा वाला 0 या दोनों 0। तो पहला वाला 0 x - 5 = 0 एंड सेकंड x - 2 = 0। सो -5 राइट में जाएगा, x = 5, -2 राइट में जाएगा, x = 2। सो हियर वी गॉट द टू वैल्यूज ऑफ x, 5 and 2। सो हियर zeros of the polynomials are 5 and 2। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, यहाँ पे x² के कोएफिशिएंट को आपको लास्ट टर्म से जरूर मल्टीप्लाई करना है विद द साइन। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। और ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। ये +10 है, +10 को यहाँ पे लिखो, ये -7 है, -7 को यहाँ पे लिखो और फिर उसके प्रॉपर फैक्टर ढूंढो। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, गो अहेड नेक्स्ट सम। देखो अभी ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, 4 टर्म्स है यहाँ पे, x³ - 2x² + x - 2 हियर। इसके हमें जीरोस निकालना है, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब देखो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के बहुत सारे मेथड्स है। शुरू में तो हम क्या निकालते हैं? कॉमन निकालते हैं। अगर कॉमन निकलते हैं, फैक्टराइज कर पाते हैं लेफ्ट साइड को, तो वो सबसे आसान काम है। देखो इस सम में क्या कर सकते हैं हम लोग। पहले दो टर्म देख रहे हो, x³ - 2x², इन दोनों में से हमने x² कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा? x - 2। और लास्ट के थर्ड और फोर्थ टर्म में से मैंने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा कितना? x - 2 = 0। देखो ये दो ब्रैकेट्स हैं आगे, x - 2 x - 2। यहाँ पे x - 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा x² - 1। सो x - 2 × x² - 1 = 0। दोनों के प्रोडक्ट को 0 कर देंगे। x - 2 = 0 एंड x² - 1 = 0। तो फर्स्ट के अंदर x - 2 0 है, -2 राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा, x = 2 आ जाएगा। चलो फर्स्ट 0 आ गया। अब बचा x² - 1, इसको हम -1 को राइट में लेके जाएंगे। सो x² = 1। हमें x चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ। Let's take the square root. So x = +-1. So here again यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये 2 जीरोस है कि 3 जीरोस है? यहाँ पे 3 जीरोस है। पहला 0 2 आया और दूसरे के अंदर प्लस माइनस है, तो प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है आपको, तीनों लिखने हैं आपको। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा zeros of the polynomial is 2, 1 and -1। समझ में आया? क्यूबिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने इतना इजी नहीं होता है, इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। जैसे जैसे आगे सम्स आएंगे आपको दिखाऊंगा मैं। यहाँ पे आप फोर्थ सम में देखो, जो पॉलिनोमियल दिया गया था वो क्यूबिक पॉलिनोमियल था, उसका डिग्री कितना था? 3 था। यहाँ पे कितने जीरोस आए? 3। सम नंबर थर्ड में देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, डिग्री 2, जीरोस कितने आए? 2। सम नंबर 2 में
अगेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, जीरोस कितने आए 2, सम 1 में डिग्री 1 है, जीरोस कितने आए 1. सो इन दिस वे जो डिग्री है वो रिप्रेजेंट करता है, वो पॉपअप करता है कि कितने इसके जीरोस निकल सकते हैं, कितने उसके मैक्सिमम जीरोस निकल सकते हैं. ठीक है, मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, बहुत बार ऐसा होता है कि जीरोस रिपीट हो जाते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं. ठीक है, तो डिग्री रिप्रेजेंट्स टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ zeros. So from the above sums, it is observed that degree of polynomial is equal to total maximum number of zeros of the given polynomial. समझ में आया? Okay, let's go ahead. Relationship between coefficients and zeros of the polynomial. देखो कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ पे ए ज़ीरो नहीं होगा. अब डिग्री कितनी है यहाँ पे 2 है. जीरोस कितने होने चाहिए 2, जिसको हम डिफाइन करेंगे अल्फ़ा और बीटा से. अल्फ़ा और बीटा ये ग्रीक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे ABCD होता है इंग्लिश में वैसे अल्फ़ा बीटा होता है. तो यहाँ पे जीरोस के लिए 2 जीरोस के लिए अल्फ़ा बीटा यूज़ करेंगे. अगर जीरोस 3 हो गए तो हम अल्फ़ा बीटा गामा यूज़ करेंगे फॉर द क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, लेट अल्फ़ा बीटा आर जीरोस. सो हियर सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय अल्फ़ा प्लस बीटा. यहाँ पे आपको याद रखना है, ये फार्मूला याद रखना है, इट्स अ फार्मूला. सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. बी और ए कहाँ पे है, इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है. यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो बी और ए है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है. व्हाट इज ए, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म, कोएफिशिएंट इन द स्क्वायर टर्म. व्हाट इज बी, कोएफिशिएंट इन द एक्स टर्म. कीप दिस इन माइंड. कंपल्सरी माइनस साइन आएगा, लेकिन b अगर निगेटिव हो तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो सकता है, वो बात का सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन कंपलसरी फार्मूले में माइनस साइन देना है. ठीक है, सो सम ऑफ जीरोस इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. ठीक है, गो अहेड. फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल whose standard form is ax cube plus bx square plus cx plus d where a is not equals to 0. ठीक है, so here degree is 3. How many zeros are there? 3 zeros, of course. Alpha, beta and gamma, we define it. Let alpha, beta, gamma are zeros of the given polynomial. So here sum of zeros alpha plus beta plus gamma, इसकी वैल्यू अगेन सेम फार्मूला माइनस बी अपॉन ए. ओके, ये हो गया सम ऑफ जीरोस. अब हम क्या करेंगे, दो जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे और फिर बाद में प्लस करेंगे. क्या कहा मैंने, 2 जीरोस का प्रोडक्ट करेंगे और बाद में उसका सम लेंगे. दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दैट इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. अगेन सेम हायरार्की में आपको जाना है. यहाँ पे फर्स्ट का माइनस बी अपॉन है, इधर भी फर्स्ट का बी माइनस बी अपॉन है, इधर फर्स्ट का सी अपॉन है लेफ्ट साइड के अंदर. क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए भी सेम है, सी अपॉन है. अब लास्ट में बताता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा बीटा गामा, दैट इज पहले माइनस साइन फिर प्लस साइन अगेन माइनस साइन, माइनस डी अपॉन ए. याद रखोगे इसको, जरूर याद रखना. सम बनते हैं इसके ऊपर एग्जाम्स के अंदर. ऑफ कोर्स number of times it is going to ask the questions, find the sum of zeros, find the product of zeros for 1 mark or 2 marks. Okay, let's go ahead. Polynomials from zeros. If the polynomial is given to us, we could find out the zeros. Now exactly vice versa, if zeros are given to us, how will you find out the required polynomial? Let us see that. Let alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then required quadratic polynomial is given by this formula. P of x equals to k in bracket x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta bracket over.
where k is a constant not equal to 0. So first term, that is x square. Second term, minus alpha plus beta into x plus alpha beta. Clear to you? You need to remember this formula. Of course, in exam question is going to ask. Here compulsory minus sign should be there before alpha plus beta. When you write the formula, you need to put minus sign. So compulsory minus sign should be there. Okay? Understood? Let's go ahead. Exercise 2.2. 2.1 is on the graphical part, that we will see later. Right now, let's go for the exercise 2.2. Here, we will verify the relationship. Some quadratic polynomials are given to us. We need to find out the zeros. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and coefficients. Zeros means alpha, beta, gamma. And coefficients A, B, C. दोनों के रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है. दोनों के रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है. रिलेशनशिप कहाँ दी गई थी? देखो इसके अंदर दी है रिलेशनशिप. क्वाड्रेटिक के लिए दो रिलेशनशिप है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. मतलब जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो आपको ये दो फार्मूले को वेरीफाई करना है. वेरीफाई करना है मतलब LHS लेना है, RHS लेना है, दोनों सेम आने चाहिए. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू निकालो, दोनों सेम आनी चाहिए. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अंदर अल्फा बीटा की वैल्यूज निकालो, सी अपॉन ए की वैल्यूज निकालो, वो दोनों सेम आनी चाहिए. सेम फॉर क्यूबिक. ओके, गो अहेड. यस, टेक द फर्स्ट सम हियर. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. वी नीड टू फाइंड इट जीरोस. क्या करना है जीरोस निकालने के लिए? ऑफ कोर्स उसको जीरो बना देने का है, इज इक्वल टू जीरो कर देने का है. सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. ओके, मैंने आपको लास्ट टाइम कुछ इंस्ट्रक्ट किया था. एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 इंटू माइनस 8 हो जाएगा. और मतलब प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? माइनस 8 चाहिए. और सम और डिफरेंस आपको माइनस 2 चाहिए. सम और डिफरेंस इज माइनस 2 हियर. इट इज printing mistake is there. Instead of 8 it should be minus 2. So here we need to find the two numbers whose product is minus 8 and their sum or difference is minus 2. माइनस 8 का मतलब क्या हुआ? 8 का साइन माइनस है, मतलब दोनों का डिफरेंस आपको माइनस 2 निकालना है. दोनों का डिफरेंस आपको माइनस 2. 4 एंड 2 का डिफरेंस माइनस 2 आना चाहिए. तो यहाँ पे 4 का साइन माइनस और 2 का साइन प्लस. सो माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 और माइनस 4 प्लस 2 दैट इज माइनस 2. यस, सो माइनस 2 को हमने स्प्लिट कर दिया माइनस 4x प्लस 2x. माइनस 2 को हमने स्प्लिट किया माइनस 4x प्लस 2x. फर्स्ट टू टर्म्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x माइनस 4. थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म दैट इज 2x माइनस 8, दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा x माइनस 4. देखो कॉमन लेने के बाद में x माइनस 4 दोनों टर्म के अंदर x माइनस 4 आपको दिखनी चाहिए. ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आना चाहिए. इसका मतलब हमने जो कॉमन टर्म्स लिए हैं वो सही लिए हैं करके. अगेन x माइनस 4 को कॉमन लेंगे. चलो आगे बढ़ते हैं. x माइनस 4 कॉमन लिया, सेकंड ब्रैकेट में बच गया x प्लस 2. पहले टर्म का x और दूसरे टर्म का प्लस 2 दैट इज x प्लस 2. दोनों की प्रोडक्ट 0 है. x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0. दोनों को इज इक्वल टू 0 कर देंगे. x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. गो अहेड. माइनस प्लस 2 राइट में जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 4 राइट में जाएगा प्लस 4 हो जाएगा. सो x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड माइनस 4. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, वी गॉट द 2 zeros माइनस 2 एंड 4. एक को अल्फा और दूसरे को बीटा मान लेंगे. सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2, बीटा इक्वल्स टू 4 ईयर. ओके, सो अल्फा बीटा वी गॉट हियर अल्फा माइनस 2 बीटा 4. ए की वैल्यू कितनी है? ax स्क्वायर. ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू माइनस 2 और सी की वैल्यू माइनस 8 ईयर. लेट्स सी द वेरिफिकेशन. पहला फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. LHS ले लेंगे अल्फा प्लस बीटा. देखो दोनों रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए. LHS अल्फा प्लस बीटा. अल्फा कितना है? माइनस 2, बीटा 4. सो माइनस 2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2.
RHS minus B upon A. So minus sign keep as it is. The value of B is minus 2, value of A is 1. So minus of minus 2 upon 1. माइनस माइनस कट जाएगा, 2 आ जाएगा. सो LHS 2 RHS भी 2. सो ये पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. सेकंड रिलेशनशिप LHS ले लेंगे. अल्फा इंटू बीटा, अल्फा माइनस 2 इंटू 4 दैट इज माइनस 8. RHS ले लेंगे माइनस 8 अपॉन 1 दैट इज माइनस 8. दोनों सेम आ गए, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. दोनों काम हमने कर दिए यहाँ पे. नेक्स्ट सम, सेकंड सम, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. यहाँ पे वेरिएबल s है इंस्टेड ऑफ x. ओके, यहाँ पे इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर टर्म के कोएफिशिएंट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करना है. 4 इंटू प्लस 1 दैट इज प्लस 4 हो जाएगा. 4 इंटू 1 दैट इज प्लस 4 हो जाएगा. और उसको ब्रेक करना है माइनस 4 में. 4 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि जिसका सम माइनस 4 आता हो. 2 टू ज़ा 4 ऑफ कोर्स, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो जाएगा. तो हम माइनस 4s को स्प्लिट मारेंगे. माइनस 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स टू 0. ठीक है, माइनस 4 को माइनस 2 में मैंने तोड़ दिया. पहले दो टर्म में से 2s कॉमन ले लो, बचेगा 2s माइनस 1. दूसरे दो टर्म में से माइनस 1 कॉमन ले लो, बचेगा 2s माइनस 1. दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, ब्रैकेट कॉमन ले लो 2s माइनस 1, ब्रैकेट में बचेगा 2s माइनस 1. दोनों टर्म सेम है, आइडेंटिकल है, डजेंट मैटर, कोई चलेगा. ठीक है, दोनों को इक्वल टू 0 कर देंगे. सो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वाला भी एज इट इज. दोनों में से हम s निकालेंगे. s की वैल्यू कितनी है, 1/2. एक को अल्फा ले लो, दूसरे को बीटा ले लेंगे. ठीक है यार, अब इसका हम वेरिफिकेशन करेंगे. अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन है, LHS ले लेंगे. 1/2 प्लस 1/2 दैट इज 1. RHS के अंदर माइनस ऑफ बी अपॉन ए, माइनस साइन, बी की वैल्यू माइनस 4/1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. 4/4, 4 कट जाएगा दैट इज 1. सो पहला रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया. सेकंड, अल्फा इंटू बीटा 1/2 1/2, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे का नीचे से. 1 इंटू 1 दैट इज 1 एंड 2 इंटू 2 दैट इज 4. सो LHS 1/4. RHS अगेन 1/4. कैसे आया 1/4? RHS C अपॉन है, C की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 4 दैट इज 1/4. ठीक है, गो अहेड. पहले दो सम किए थे. थर्ड सम 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. देखो ये जो थर्ड सम है ये कैसा है, इसमें लास्ट टर्म पहले लिखा है और मिडिल टर्म बाद में लिखा है. एज पर स्टैंडर्ड फार्मूला पहले स्क्वायर टर्म, फिर एक्स टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए. तो आपको उसको रीअरेंज कर देने का है विद द साइन. देखो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप लिया नहीं, डायरेक्ट दे दिया है मैंने यहाँ पे. 6x स्क्वायर, तो फर्स्ट स्टेप को देखो. 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x. ईयर आप 7x को पहले ले लो, 3 को बाद में ले लो, दोनों नेगेटिव है, विद द साइन उठाओ उसको. 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0. स्टेप थर्ड में देखो, अभी स्टेप नंबर थर्ड. स्टेप नंबर थर्ड, इसके अंदर यहाँ पे देखो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, -18. -18 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं कि आपको डिफरेंस कितना आना चाहिए, -7. -18 को तोड़ना है दो नंबर्स के अंदर, आपको डिफरेंस आना चाहिए -7. 9 2 ज़ा 18, -9 प्लस 2 दैट इज -7. सो इस तरह से -7 को हमने स्प्लिट मारा है -9x प्लस 2x, -9x प्लस 2x. सो यहाँ पे फर्स्ट दो टर्म में से फर्स्ट एंड सेकंड टर्म -6x स्क्वायर -9x, इसमें से 3x कॉमन ले लिया, बच गया 2x माइनस 3. सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म 2x माइनस 3 में से मैंने 1 कॉमन ले लिया यहाँ पे. सो 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 में से हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे. यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा 3x प्लस 1. सो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. दोनों का प्रोडक्ट 0 है. सो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0.
-3 राइट में जाएगा, दैट इज़ 2x इक्वल्स टू 3, 2 अपॉन में जाएगा, x इक्वल्स टू 3/2, राइट साइड में x इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा आ गए तुम्हारे दो जीरोस, 3/2 एंड -1/3। आगे बढ़ते हैं, यस वेरिफिकेशन कर देंगे इसके अंदर। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, तो 3/2 -1/3। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 2 एंड 3 आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, दैट इज़ 9, 2 1 ज़ा 2, 9 minus 2 अपॉन 2 3 ज़ा 6, so 9 minus 2 upon 6, 9 minus 2 7 upon 6 here, and RHS minus B upon A, B कितना है -7 और A कितना है 6, so -7 upon 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 7 upon 6, so LHS equals to RHS। अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है, उसी तरह से हमने क्या किया, LHS को लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, 3/2 इंटू -1/3, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, 3 इंटू -1 दैट इज़ -3 एंड 2 3 ज़ा 6, सो आया -3/6 इज इक्वल टू करेंगे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा करेंगे तो LHS आएगा -1/2। RHS C अपॉन ए, C कितना है -3 अपॉन A 6, दैट इज़ -3/6, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा दैट इज़ -1/2। तो आगे दोनों सेम, LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट सम, 4u² प्लस 8u, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है तो मैंने 0 ले लिया, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। बताया सिर्फ आपको कि कांस्टेंट टर्म मिसिंग था, इसे मैंने 0 लिखा है यहाँ पे। अब फर्स्ट टू टर्म देखो ध्यान से, 4u² प्लस 8u, u कॉमन निकलता है और 4 और 8 में से 4 भी कॉमन निकलता है, मतलब 4u कॉमन निकलेगा, बचेगा ब्रैकेट के अंदर u + 2 = 0, 4u = 0, सो u इज इक्वल टू 0/4 दैट इज 0, सो अल्फा इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड पार्ट, u + 2 = 0, 2 राइट में जाएगा -2 हो जाएगा, दैट इज बीटा इक्वल्स टू -2। वेरिफिकेशन बड़ा इजी, अल्फा प्लस बीटा -b/a, so alpha plus beta 0 minus that is -2, RHS -b/a -b 8/4 that is -2, RHS के अंदर अल्फा बीटा C/a जिसमें LHS अल्फा बीटा दैट इज 0 इंटू -2 दैट इज 0, RHS के अंदर C/a, C कितना है 0/4 दैट इज 0, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई। नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, t² -15, t² -15, यहाँ पे मिडिल टर्म मिसिंग है, मैंने 0t बना के लिख दिया। अब सीधी सी बात है कि जब भी आप जीरोस निकालेंगे तो इज इक्वल टू 0 करेंगे, मिडिल टर्म नहीं है तो t² -15 = 0, 15 राइट में जाएगा तो +15 हो जाएगा, सो t² = 15। हमें t निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 15 दैट इज ±√15, 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इट विल रिमेन एज इट इज़। सो टी के दो वैल्यूज़ √15 एंड -√15, एक को अल्फ़ा मान लो, दूसरे को बीटा मान लेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, सो LH इज इक्वल टू -15, 15 - 15 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, RHS दैट इज b/a -b/a, यहाँ पे -b मतलब 0 है, b की वैल्यू 0, a 1 है यहाँ पे, b 0 है और c 15 है, तो ये RHS हो जाएगा -0/1 दैट इज़ 0। अल्फ़ा बीटा ले लेंगे, C/a LHS -15 टू √15, रूट हट जाएगा दोनों का और -15 आ जाएगा, RHS C/a दैट इज़ -15/1 दैट इज़ -15। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट एक लास्ट सम बचा है, उसको देख लेते हैं। देखो 3x² - x - 4, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा। ब्लूइश पार्ट को देखो ध्यान से, यस 3x² - x - 4, यहाँ पे 3 इंटू -4 करोगे,
3 इंटू -4 करोगे तो -12 आएगा। -12 के 2 फैक्टर ढूंढने हैं और उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, -1। 2 नंबर्स जिसका प्रोडक्ट 12 हो और डिफरेंस 1 हो। 4 3 ज़ा 12, 4 और 3 का डिफरेंस 1। बड़ा नंबर नेगेटिव, छोटा नंबर पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमने -1 को स्प्लिट किया है, -4x + 3x, -4 = 0। अब फर्स्ट 2 टर्म देखो ध्यान से, फर्स्ट 2 टर्म्स 3x² - 4x, इन दोनों में से मैं x कॉमन ले लूँगा, बचेगा कितना, 3x - 4। और इधर थर्ड और फोर्थ टर्म 3x - 4, कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लो, 3x - 4, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, 3x - 4, 3x - 4, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, बचेगा ब्रैकेट में x + 1 = 0। सो वी गॉट द फैक्टर्स 3x - 4 एंड x + 1 = 0। पहला फैक्टर 0, दूसरा फैक्टर भी 0, दोनों को 0 बना देंगे। -4 राइट में जाएगा, +4 हो जाएगा, 3x = 4, x = 4/3, सो अल्फा = 4/3। 1 राइट में जाएगा, x = 1, x = -1, so here beta = -1। वेरिफिकेशन में फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा कितना 4/3, बीटा -1, 4/3 -1, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4 - 3/3, 4 - 3 1/3, RHS -b/a, b की वैल्यू कितनी है -1, a की वैल्यू 3, सो माइनस ऑफ -1/3, माइनस माइनस गेट कैंसिल, 1/3, ये हो गया आपका LHS। नाउ अल्फा + बीटा c/a, LHS ले लेंगे, अल्फा बीटा 4/3 × -1, दैट इज -4/3, RHS c/a, c कितना है -4, a3 दैट इज -4/3, दैट इज -1, अब दोनों सेम आ गए, सो रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। ओके, सो इन दिस वे हम लोगों ने यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकाले और उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई किया है। एग्जाम में 100% 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, आपको सिस्टमैटिक वे में इसी तरह से लिखना है। यू नीड टू राइट इन द सेम वे इन द एग्जामिनेशन एंड यू नीड टू शो दिस इन्वर्टेड V also. It gives the proper confidence while splitting the middle term. Keep this in mind. And whenever after this video you need to have a special notebook for maths. Don't write in rough, write in fair. Make a special notebook of maths. In that notebook, write from the beginning, write properly in your notebooks. I will share the PDF of entire presentation to you. Okay, so homework is there for you. These are the examples. Example 2, illustration 2 is there. Find the zeros of the quadratic polynomial x² + 7x + 10 and verify the relation between zeros and coefficients. You need to do. Already you have the PDF of textbook. आपको एग्जाम्पल 2 करना है होमवर्क के फॉर्म के अंदर। इसके अलावा मैं एक्स्ट्रा होमवर्क देने वाला हूँ आपको, लेकिन ये जो दे रहा हूँ ये जरूर करना है क्योंकि ये टेक्स्ट बुक का है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में सॉल्व है, हम छोड़ देते हैं, आप लोग भी छोड़ देते हो। वी स्किप एंड यू स्किप, व्हाई? इट इज सॉल्व इन द टेक्स्ट बुक एंड इट इज गोइंग टू आस्क इन द एग्जामिनेशंस, सो डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क। एग्जाम्पल 3 इज ऑल्सो देयर. Find the zeros of the polynomial x² - 3. Here missing term is middle term, doesn't matter, right? Plus 0x and verify the relationship. So this is all about the today's lecture. I think if I proceed ahead, it will be overdose for you. So what we have studied here, in brief, we discuss about what is polynomial, its definition, its standard form, and what is the minimum requirement for the polynomials that we discussed. Then we discussed the types of polynomials based on degree of the polynomial, based on the number of terms. Okay, and we wrote their standard form of the linear polynomial, quadratic polynomial and cubic polynomial. Okay, then we discussed the degree of the polynomials. And then we found out an important relationship while solving the sums, that number of zeros is totally based on the degree of the polynomial.
If the quadratic polynomial is there, maximum zeros will be 2. If the cubic polynomial is there, maximum zeros will be 3. Okay, in this way. Then we did exercise 2.2 question number 1. In that, before that we discussed the relationship between zeros and coefficients. Zeros, alpha, beta, and coefficients a, b, and c. For quadratic polynomial we discuss alpha plus beta is equal to minus b upon a, alpha beta c upon a.